devotee guest saint from ISKCON, worthy principal sir and my colleagues and dear children, good morning to all of you. Good morning, sir. So you might be feeling happy today as your exams are over and in some of the subjects you might have got your results also. So in this context today we have a special guest who is also an alumni of Navodaya Vidyalaya, Mr. Jagannath Yatra Das, who completed his education from Navodaya in 1998 with first rank in class 10th at JNV Jalgaon and second rank in class 12th from JNV Jalgaon. So I extend a heartiest welcome to this special guest in this morning assembly and just request to all of you to listen whatever he is going to deliver or discuss with you. After class 12, he got admission in Bachelor of Technology in Mechanical Engineering and passed his BTech from BJTI College in Mumbai in 2004. And after that, he worked as a teacher in different engineering colleges for more than 8 years. And after that, he decided to devote his life in a full time in ISKCON. ISKCON is an international society for Krishna consciousness, Mumbai, for spreading spiritual knowledge of Bhagavad Gita in society since 2012. So you can see that for the last 12 to 13 years, he is very much associated with this very famous religious organization ISKCON. Until now, he has visited 156 GNVs of 17 states and 4 union territories of 7 NBS regions. And the main purpose of these visits are teaching life skills and values to the students, which is the very important in our life. So I again extend my heartiest welcome on behalf of the whole this Navodaya Vidyalaya to this wise soul on this stage, and I would like to request Shri Jagannath Das ji to please come over the stage and address our students. Sir, please. थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, आधा घंटा है ना उनको। हाँ सभी एक साथ नीचे बैठ। आप बैठ जाइए। First of all, I would like to thank our dear Principal Sir, Shri Gupta ji, all our teachers, to give me the shelter and the opportunity to serve here at JNV, Rupnagar of Punjab State. I wish you all good morning. I feel very happy to be with you to discuss about life. जीवन के विषय में जानना सबको आवश्यक है, क्योंकि जीवन सबसे मूल्यवान है। विषय लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्य। तो हमें जीवन का मूल्य पता होना चाहिए कि लाइफ वैल्यू क्या है, जीवन का मूल्य कितना है। कभी कोई वस्तु का हमें मूल्य पता नहीं होता है तो हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, और जो मौका मिला होता है वो हम गंवा देते हैं। और सबसे विशेष क्या है, मनुष्य जीवन।
जीवन तो अनेक प्रकार का होता है। पशुओं का भी जीवन है, पंछियों का जीवन है, कीटक जो होते हैं उनका जीवन है, पेड़ पौधों का जीवन है, देवताओं का भी जीवन होता है, दानवों का भी जीवन होता है, हमें मनुष्य का जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन सबसे मूल्यवान या अनमोल कहा गया है। क्यों? जो मनुष्य जीवन में हम पा सकते हैं और बाकी पशु पंछी दानव देवता बन के नहीं पा सकते हैं। जो पृथ्वी है, धरती माता जो हम बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे विशेष बताया गया है। कौन बताया है? वेद बताते हैं। वेद कौन दिए हैं? भगवान दिए हैं। क्यों भगवान दिए हैं? क्योंकि वही जानते हैं दुनिया कब बनी है, दुनिया कैसे बनी है, क्यों बनी है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। ये ज्ञान उसे हो सकता है जिसने बनाया है, जिसको पता है। मनुष्य जो है, जो स्वयं के विषय में जानता नहीं, वो अपनी छोटी बुद्धि से कल्पना करके, दिमाग लगा के दुनिया कब बनी होगी, कैसे बनी होगी, क्यों बनी होगी, केवल कल्पना कर सकता है, कभी जान नहीं सकता। क्यों? वो स्वयं को जानता नहीं है। तो जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, कब उत्पन्न हुआ, कैसे, क्यों उत्पन्न हुआ, ये भी जो सवाल है, इनका जवाब भी मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि से कल्पना करके समझ नहीं सकता। आज हम साइंस के नाम पर जो कुछ पढ़ते हैं, कभी बायोलॉजी में पढ़ते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, मनुष्यों ने बनाई कल्पनाएं हैं। तो उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, जिसका बेसिस है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन, जो समय के साथ बदलता रहता है। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक लॉ 3 बार बदल गया हो। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक लॉ 3 बार बदल गया। पहला स्टेटमेंट था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। 1838 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बाद में आए रुदरफोर्ड, नहीं ये गलती, इसमें प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है। एटम कैन बी स्प्लिट, डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नील्स बोहर आए, बोले इसमें भी गलती है, इसमें कमी है। क्या कमी है? बोले उतना ही नहीं, उसमें फोटॉन भी होता है, मेसॉन भी होता है। ये उनका स्टेटमेंट है। तो ह्यूमन रिसर्च जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि नाम ही रिसर्च है, रिसर्च, संशोधन। क्योंकि अपनी खोज में हमेशा कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो रिसर्च करना पड़ता है, बार बार ढूंढना पड़ता है। यदि आपको एक सवाल पूछूं, हम सब जन्म लेके तो दुनिया में आए हैं, दुनिया के हम सभी चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं, हम हमेशा जीना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं हम दुनिया में जो आए हम कहाँ से आए हैं। ये बात तो नहीं है कहीं नहीं थे, ऐसे केमिकल से हम बाई चांस यहाँ जन्म लिए, ऐसी बात तो नहीं होती है। जैसे आप लोग स्कूल में जो आए हैं 6th क्लास में, ये तो नहीं है कि बाई चांस आप ऐसे ही यहाँ कहीं से नहीं आए, ऐसे ही यहाँ प्रकट हो गए, जन्म मतलब यहाँ पहली बार प्रकट हो गए, ऐसी बात तो नहीं होती है। हम समझते हैं हम कहीं से आते हैं और कहीं जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है। बच्चों को सबको याद है कि हम अपने गांव से आए हैं स्कूल में, और ये भी जानते हैं हम थोड़े समय के लिए हैं, वापस भी जाना होता है। तो नवोदय समिति जो है स्कूल के गेट पर लिख देती है, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। कभी आपने पढ़ा है, कभी यहाँ लिखा है गेट पे कभी कहीं कि कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। तो विथ कमिंग देयर इज ऑलवेज गोइंग ऑल्सो। तो हम जो दुनिया में आए हैं, मुझे सवाल ये पूछना है कि आप कहाँ से आए हैं। यदि हम स्वयं को पूछे कि हम कहाँ से आए हैं, हम नहीं जानते हैं, हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? समय का प्रभाव होता है कि हम भूल जाते हैं। जैसे हम जन्म से पहले 9 महीना माँ की पेट में होते हैं, हमें वो 9 महीना का कुछ याद नहीं। जन्म के बाद हम 2-3 साल माँ की गोद में होते, दूध पीते बच्चे, हमें वो भी याद नहीं, हम भूल जाते हैं। ये भूलना अपना स्वभाव है समय के साथ। ये तो बड़ी बात है, इतना अभी पुराना चीज़ है। पिछले हफ्ते
टीचर ने क्या सिखाया था, वो भी बहुत लंबी बात हो गई है। अभी 1 घंटे पहले टीचर ने क्या बताया था, वो भी बहुत बच्चे तो भूल ही जाते हैं, सुन ही नहीं पाते बहुत समय ध्यान से। तो ये अपनी कमियां हैं, हम अपने स्वयं के विषय में नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं। एक मनुष्य होने के नाते ये अपना जिम्मेदारी है कि हम जाने तो सही, कोशिश तो करें कम से कम। हाँ, कहीं से तो मैं आया होगा, नहीं कोई आवश्यकता नहीं जानने की, बस फिजिक्स का केमिस्ट्री में है ना, जो एटम मॉलिक्यूल केमिकल है, बस वही स्टडी करो। अपने विषय में इतना क्यों सोचने की आवश्यकता है, हम कहाँ से आए, केमिकल कहाँ से आया, ये जो जाति है कोई वस्तु की, मेटल नॉन मेटल, ये कहाँ से आया वो ढूंढो, हम कहाँ से आए वो मत ढूंढो। ऐसा मनुष्य को उस मानसिकता होता है, क्योंकि वो अपने जीवन को मूल्य नहीं देते हैं, नहीं समझते हैं कि मनुष्य जीवन का मूल्य कितना है। यदि हम जाने बच्चों, वेद जो है स्वयं भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। कब दिया ज्ञान और किसको दिया? पहले जब ब्रह्मांड बनते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जब बनते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, भगवान की नाभि कमल से जो है ना जन्म होता है ब्रह्मा जी का। आपने कभी फोटो देखी होगी कि भगवान विष्णु दिखाते हैं, उनके नाभि से कमल दिखाते हैं, कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी को दिखाते हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा दिखाते हैं। अब ये कोई ऐसे कल्पना नहीं है, कोई ऐसे बना दिया है, इसको एक आधार है। आप बोलेंगे हम कैसे माने? पहले कम से कम थोड़ा अपनी बुद्धि से उसको पढ़े तो सही, देखे तो सही। जब पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बस ऐसे ही बोल देंगे नहीं कल्पना है। ब्रिटिश लोगों ने जो अपना इस देश को लूटा, फंसाया, अत्याचार किया, अन्याय किया, गुलाम बनाया, उन लोगों की चाल थी इस देश की ताकत जो है वैदिक साइंस, वैदिक विज्ञान, उसको निकाल देना है, ताकि ये लोग जो हैं बस कल्पनाओं में ही खो जाए, जो अंतिम सत्य ज्ञान है इनको कभी ना मिले। उन्होंने क्या कर दिया, ये मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। लॉर्ड मैकॉले जो था, जो इस देश का अभ्यास करने के लिए आए थे पहले, उसने एक रिपोर्ट दी है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। उसने लिखा है इनकी जो ताकत है वैदिक साइंस है, विज्ञान, जो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि उसका बेसिस ह्यूमन रिसर्च नहीं है। जिसमें कमियां होती है उसमें दोष होता है, गलतियां होती है और फंसाने की वृत्ति होती है। ये भगवान ने दिया हुआ वैदिक साइंस है। कब दिया है? जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान दिया गया वेद। हम समझते हैं जो माता सरस्वती है विद्या की देवता, वो ब्रह्मा जी की शक्ति है, पत्नी है, उनके हाथ में हम पाते हैं वेद होते हैं। तो वेद कोई कल्पना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इस वैदिक साइंस बुक्स को माइथोलॉजी बुक्स बोल दिया। सबसे बड़ा अटैक यही था कि जो सत्य हैं, जो अनादिकाल से पूरे ब्रह्मांडों के विषय में डिटेल में, विस्तार में सब कुछ ज्ञान दिया है, सब कुछ उसमें मेडिकल साइंस भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है उसमें। यदि हम पढ़ेंगे, अभी हम 25 साल से भगवद गीता, भागवत, उपनिषद, गीता और जो वैदिक साइंस की बुक्स है तो पढ़ा हूँ, सीखा हूँ, तो मुझे पता है। जब तक मैं मुझे जानता नहीं था तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है ये भी कभी सब सोचा नहीं था। लेकिन जब हम वैदिक साइंस पढ़े तो समझ में आया, यही तो मूल विज्ञान है जहाँ हमें सभी प्रश्नों के उत्तर एग्जैक्टली मिलते हैं। मे बी, माइट बी, जैसे भाषा होती है कभी साइंस में, आजकल की मॉडर्न साइंस में, ऐसी भाषा नहीं, एग्जैक्टली सब ज्ञान दिया है। क्योंकि भगवान जब ज्ञान देंगे तो परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है। जैसे कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, मशीन बनाती है, व्हीकल बनाती है, तो कंपनी एक मैनुअल छपाती है, उसे बोलते हैं यूज़र गाइड। पुस्तक छापती है ना, यूज़र गाइड। वही कंपनी, वही इंजीनियर्स जानते हैं तो मशीन कैसे बनी है, उसके पार्ट्स क्या, उसके फंक्शंस क्या है। कोई पान वाला, बीड़ी वाला, दारू वाला किताब नहीं लिख सकता अपनी कल्पना से, मुझे लगता है मशीन जो है ना ऐसी बनी होगी, इसके लिए बनी होगी। नहीं, कल्पना नहीं, जो बनाया है वही जान सकता है। वैसे ही दुनिया जो बनी है
तो वही जानता है जो बनाया है। आप बोलेंगे कैसे माने कोई बनाया होगा? आज का मॉडर्न साइंस तो बस केवल कल्पना कर दिया है, बिग बैंग थ्योरी। दुनिया कैसे बनी तो 100 साल पहले कोई कल्पना कर दिया अपने मन से। मुझे लगता है बड़ा विस्फोट हुआ होगा, विस्फोट से बना होगा। हम समझते हैं कॉमन सेंस से, विस्फोट से कुछ बनता तो नहीं है। विस्फोट से क्या? जैसे बच्चे नवोदय के बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। आप लोग बनाते हैं पेंटिंग अच्छे? हाँ जी हाँ, अच्छी बात। तो पेंटिंग बनाते हैं बच्चे, अच्छे स्केच बनाते हैं, कलर करते हैं, तो नीचे नाम भी लिख देते हैं, नाम, क्लास। आप लोग लिखते हैं नाम? नाम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। यदि मैं आऊँ, जो गेस्ट आया हूँ समझो 1 दिन के लिए, तो मैं पूछूँ प्रिंसिपल सर से, गुप्ता सर, सर ये जो पेंटिंग है समझो वहाँ पे नाम लिखा नहीं है और मैं उनको पूछता सर ये पेंटिंग कौन बनाया है? सर यदि मुझे बताए कि सर ये पेंटिंग में बनाया थोड़ी है, जब बच्चों ने होली के रंग उड़ाए थे, होली खेले थे, वो होली के उड़ते उड़ते रंगों ने ये पेंटिंग बना दी सर, ऐसे थोड़ी बनाता कोई थोड़ी है। तो मैं सर को बोलूँगा सर मैं पागल तो नहीं हूँ कि आपकी बात को मान लूँगा कि ये कोई बनाया नहीं है, ऐसे ही होली के रंगों से बन गया है। हम समझते हैं कि एक सादा पेंटिंग बनने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए, कोई बुद्धि चाहिए, कोई कला चाहिए, कोई उसमें विचार चाहिए, कोई हेतु चाहिए। इतना सुंदर अनंत विश्व बनाने के लिए कोई नहीं सोचा होगा। आप देखिए विश्व में जो कुछ बना हुआ है उसमें एक ब्यूटी है, सौंदर्य है, उसमें एक कला है, उसमें एक सिस्टम है, ऑर्डर है, साइकिल है। केवल बनी नहीं, केवल दुनिया चलती भी है। ये नहीं कि एक बार बना दिया और फिर भगवान का कंट्रोल उससे हट गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई दुनिया। ऐसी बात नहीं है। भगवान का जो बनाया है उसका प्रत्येक चीज़ में अपना पूरा नियंत्रण है, कंट्रोल है। अपना नहीं है कंट्रोल, लेकिन भगवान का जो बनाया है उसका है। हम देख सकते हैं कि सूरज अपने समय पे उदय होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है, सब कुछ सीजन बदलते हैं। हाँ, कभी कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो बादल फट जाते हैं। वो क्यों होता है वो भी अलग कारण है। पनिशमेंट होता है, कभी रिएक्शन होती है किसकी? धरती माता की। जब धरती माता देखती हैं कि मनुष्य जो है अपना बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं और बाकी जो निष्पाप जीव है उनकी हत्या कर रहे हैं, उन पे अन्याय कर रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं, तो धरती माता को दुख होता है कि मनुष्य के लिए किसी का हत्या करना आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के लिए मैंने इतना धान्य दिया है, अनाज दिया है, दूध की व्यवस्था की है, सब कुछ दिया है, खाने के लिए फल दिए हैं, वो दूसरों को गला काट के क्यों खा रहे हैं? तो धरती माता को दुख होता है। ये सत्य है। फिर रिएक्शन देती है धरती माता। ये भूकंप जो होना, बाढ़ आना, बादल फटना, ये अपने आप नहीं होता बाई चांस। जो देवताएं होती है वो पनिशमेंट के रूप में, वो हमें समझ में नहीं आता है कि इतनी कैसी तूफान आ गई, इतना कैसे तूफान आ गया, कैसे भूकंप हो गया, हमें समझ में नहीं आता है। हमें लगता है और बाई चांस हो गई, कुछ केमिकल रिएक्शन गड़बड़ हो गया, तभी हो गया। दुनिया में जो कुछ भी है उसकी कोई देवता है, उसका वही इंचार्ज है, डिपार्टमेंट हेड है, जो बोलते हैं तेजस्क्रोड़ देवता। देखिए ये जो बातें हैं ये जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे, आज हमने वो कभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो हमें लगता है पता नहीं सच है या नहीं। लेकिन जब हम 25 साल से पढ़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में आज की पहली बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद हो या अनेक जो भी बड़े महात्मा हुए हैं, संत महात्मा हुए, उनका ये अनुभव है कि ये तो सच है कि भगवान हैं। भगवान मतलब क्या है कि जो कोई कंट्रोल कर रहा है, दुनिया को चला रहा है। जैसे अभी नवोदय स्कूल इतना सुंदर चलता है, 500 साढ़े 500 बच्चों का स्कूल जो है, 50 स्टाफ होते हैं लगभग, टीचिंग नॉन टीचिंग। ये स्कूल एक नियम से चलता है, एक सुंदर मैनेजमेंट से चलता है। और कोई सोचे नहीं कोई इसको चलाता नहीं है, कोई इसका हेड नहीं है, कोई इसका कंट्रोलर नहीं है, ये अपने आप ऐसे ही बाई चांस जिसके मन में आ जाए मनमानी चलता है, तो फिर नहीं होता ऐसे। देखिए छोटी छोटी बातों में हम देखते कंट्रोल होती है, सिस्टम होती है, मैनेजमेंट होती है, और दुनिया इतना सुंदर रूप से चल रहा है। आपने कभी देखा होगा दो पंछियों की कभी जैसे कभी ना प्लेन क्रैश हो जाते हैं, प्लेन क्रैश हो जाते, कभी आमने सामने आ जाते, कभी गाड़ी या व्हीकल्स आ जाती है। दो पंछी कभी एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं। हज़ारों पंछी उड़ते होंगे आकाश में, ये देखा गया है।
दो पंछी कभी गलती से भी, हमने तो कभी देखा नहीं है कि वो आपस में टकरा के उनको कोई हादसा हो गया, कभी नहीं होता है। वो बुद्धि उनको भी तो है। पशु ना, कभी भैंसें होती, गायें होती है, बैल होते हैं, हज़ारों की संख्या में होगी, वो कभी स्टैम्पेड नहीं करते। स्टैम्पेड वो रुकते हैं, जब तक उनको स्पेस नहीं मिलता है वो किसी के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, वो रुकते, दे वेट, दे शो पेशेंस, क्योंकि उनको बुद्धि है। तो ये बुद्धि कहाँ से आती है? तो हमें समझना चाहिए। वो तो स्कूल में नहीं आते हैं कि सीखने के लिए कि भाई उनकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। अब देखिए, सभी पशुओं को, सभी पंछियों को बुद्धि होती है। ये नहीं कि स्कूल कॉलेज से पढ़ के उनको बुद्धि आई है। जब भगवान उनको बनाए हैं, जब भगवान के साथ में होते हैं, भगवान सभी जीवों को बुद्धि देते हैं। और देखिए, ये अपना अनुभव है। कोई बोलेगा कौन देखा है? ये तो पागल ही बोल सकता है, ऐसा कौन देखा है? जैसे मोबाइल देखने से वस्तु तो नहीं है, हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आत्मा जो होती है, आत्मा जो होती है, जीव, क्या बोलते हैं उसे? जीव बोलते हैं। जीव होता है तो जीवन होता है। जिसमें जीव नहीं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? निर्जीव। क्या बोलते हैं? निर्जीव। जैसा भी ये क्या बोलते हैं, पोडियम है, डेस्क जो है, डायस है, जो भी, तो ये एक बॉडी है। नहीं हम समझते इस बॉडी में क्या है, प्लाईवुड की बॉडी है, इसमें जीव नहीं है, ये नॉन लिविंग है, जीव नहीं है। जैसे डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी में भी जीव था, हम समझते जीव था, जीव चला गया तो हम क्या हो गया, वो डेड बॉडी हो गई, उसमें भी जीवन नहीं है। तो जब जीव होता है तो जीवन होता है। ये बात नहीं कि केमिकल कम हो गया, कोई केमिकल बॉडी में कम हो गया तो डेथ हो गई, केमिकल रिफिल करने से वापस जीवन आ जाएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ये समझना, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी जो है, थ्योरी कि जीवों की उत्पत्ति केमिकल से हो गई होगी, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल से हो गई होगी। देखिए हम कितने आसानी से इसको मान लेते हैं कि केमिकल से अमीबा बना होगा सिंगल सेल का, और फिर वही इवॉल्व होते 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 आगे बंदर बन के बंदर मनुष्य बने होंगे। ये कितने सालों से हम पढ़े हैं और हमको पढ़ाया गया, जिसमें कोई सेंस भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है कि केमिकल से कैसे जीवन आ सकता है। आप देखिए, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस। सी आज जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, ब्रिटिश लोगों ने दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं साइंस बोलकर, हमें समझना चाहिए। ब्रिटिश लोग अपने देश का कल्याण करने के लिए नहीं आए थे, लूटने के लिए आए थे, फंसाने के लिए आए थे। जब उन्होंने बोल दिया माइथोलॉजी बुक्स है, क्या बोल दिया, माइथोलॉजी बुक्स, वैदिक साइंस हो, तो लोगों का श्रद्धा टूट गया, बहुत लोगों का श्रद्धा टूट गया। उनको लगा हाँ माइथोलॉजी बुक्स है। और जो इतिहास है, रामायण, महाभारत जो या पुराण होते हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हुआ है, कभी वो घटना हुई है, उसमें डिटेल में दिया गया है, कथाएं बताई गई है, ताकि हम उससे कुछ इतिहास से कुछ सीख पाए, बोध ले पाए। उन्होंने क्या बोल दिया, ये जो रामायण महाभारत है ये भी माइथोलॉजी बुक्स है, ये कुछ हुआ नहीं है। तो जो अपनी संस्कृति का आधार था, वैल्यूज़ का जो आधार था रामायण महाभारत, जब हमने उसको हटा दिया अपने सिलेबस से, अपने जीवन से, पढ़ाई से, समाज से, तो फिर आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें ना कोई बोध होता है, ना कोई शिक्षा दी जाती है, ना कोई लेसन्स बताए जाते हैं। बस कौन से साल में क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, कौन शासक आया, कौन कितना लूटा, कौन क्या अन्याय किया, बस वही बातें। हिस्ट्री हमें शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, सिखाती है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन ऐसे हो गया मॉडर्न ब्रिटिश लोगों ने, देखिए हमें समझना चाहिए कि गलतियाँ कुछ हुई है हमसे भी, कि हमने अपनी संस्कृति, अपना ही विज्ञान को छोड़कर ब्रिटिश लोगों का कल्चर, ब्रिटिश लोगों का संस्कृति को या ज्ञान को अपना लिया है। उसमें दोष है। क्या दोष है? आपको मैं सिंपल बोलता हूँ कि हम स्वयं के विषय में बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। बायोलॉजी क्या है फिर? बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, MBBS, MD कोर्स, इसमें केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी सिस्टम का स्टडी है, बॉडी पार्ट्स का स्टडी है। लेकिन जीवन का आधार तो मन भी होता है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का भी अच्छा होना, शांत होना, ना, संयमित होना आवश्यक होता है।
मन के विषय में बायोलॉजी कुछ बोलता ही नहीं है। एक साइकोलॉजी विषय अलग है, वो साइंस बोल के नहीं पढ़ाते हैं, वो अलग पढ़ाते हैं। लेकिन MBBS कोर्स में माइंड के विषय में भी होना चाहिए। बायोलॉजी में मन, बुद्धि, बिना बुद्धि के हम सही गलत चीज़ का भेद नहीं कर सकते। और बुद्धि का भी कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। अहंकार, ईगो सबका होता है। ईगो दो होते हैं, रियल ईगो, फॉल्स ईगो। हम सबकी पहचान जो है वो मानना स्वाभिमान कहलाता है, कि हम जो है हम मानते हैं कि स्वाभिमान है, अच्छा होता है, स्वाभिमान सबको अच्छा लगता है। लेकिन जो मिथ्याभिमान होता है, झूठा या अहंकार, फॉल्स ईगो, हम जो नहीं हैं वो समझना, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात, जो जीवन का आधार होता है, जीव, आत्मा, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, उसका कहीं उल्लेख भी नहीं है कि जीवन किस वजह से है। अपने शास्त्रों में, वेदों में, गीता में, भागवत में, सभी ग्रंथों में आत्मा का ज्ञान सबसे पहले दिया जाता है। क्यों? वही तो जीवन का आधार है, जीवन का कारण है। जहाँ आत्मा होती वहीं जीवन होता है। डेड बॉडी का स्टडी करने से क्या फ़ायदा होगा? जीवन का स्टडी मतलब आत्मा का स्टडी, आत्मा का विज्ञान जानना आवश्यक। क्यों? आत्मा हम स्वयं है। जब हम स्वयं बॉडी में नहीं होंगे तो फैमिली वाले अपना बॉडी को संभालने वाले, रखने वाले नहीं हैं। समझिए अपनी वैल्यू क्या है। अपनी वैल्यू बॉडी से नहीं है, अपनी वैल्यू हमसे है। यदि हम स्वयं को बोले कि हम नहीं हैं, बस बॉडी है, खाओ पियो मज़ा करो, आज के समाज की ऐसी मानसिकता है कि लोग स्वयं के विषय में, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, जो हमेशा जीता है, जो कि बदलता नहीं है, इतना ही समझते हैं। कोई ऐसे बोलता है, आई एम द बॉडी सर, आई एम फैट बॉडी सर, आई एम स्लिम बॉडी सर, आई एम टॉल बॉडी सर, आई एम शॉर्ट बॉडी, ऐसे नहीं बोलते। बोलते हैं माई बॉडी इज़ फैट, माई बॉडी इज स्लिम, ऐसे बोलते हैं। कि माई हाउस नेम इज़ उदयगिरी, माई हाउस नेम इज़ शिवालिक, ऐसे बोलते हैं। नहीं बोलते आई एम हाउस, माई हाउस, मतलब हम हाउस नहीं, हम हाउस में रहते हैं। वैसे ही हम बॉडी जो है, हम बॉडी नहीं है जो समय के साथ बदलती है। हमने जन्म लिया, छोटे 2 हाथ के बच्चे थे, समय के साथ बॉडी बदलती जाती है, बदलती जाती है। आज बॉडी बदल गई है। माँ ये नहीं बोलती है कि जो बच्चा जन्म लिया था सर वो अलग था, आज जो नवोदय में पढ़ता है वो बच्चा अलग है, ये वो नहीं, ऐसा नहीं बोलती। सर वही तो बच्चा है जिसको मैं बड़ा किया, पालन पोषण किया, और उसको मैं नवोदय में बिजी हूँ, वही तो बच्चा था। ऐसे कैसे बोल दिया वो बच्चा बदल गया? बच्चा तो वही सर। किसी का हाथ पाँव भी कट जाए कभी हादसे में, कोई हादसे में, कोई एक्सीडेंट में किसी के हाथ पाँव भी कट जाए, तब भी माँ ये नहीं बोलेगी सर मेरा बच्चे का 2 हाथ था 2 पाँव था सर, अब ये बच्चे का ये हाथ कट गया है, कहाँ पाँव कट गया, ये मेरा बच्चा नहीं सर। माँ तो ये नहीं बोलेगी। किसी का चेहरा जल गया कोई आग में, फायर में, माँ ये नहीं बोलेगा कि सर मेरा बच्चा ऐसा दिखता था, अब ये बच्चे का देखो चेहरा कैसे जल गया है, थोड़ी मेरा बच्चा है सर। तो हम समझते हैं अपने संबंध, अपनी पहचान बॉडी पार्ट्स फेस वैल्यू से नहीं है, बॉडी से नहीं है। अपनी वैल्यू जो बॉडी के अंदर व्यक्ति है, आत्मा जिसे हम कहते हैं, आत्मा कोई कल्पना नहीं है, वो हम एक व्यक्ति है। इतना सेंस आज के समाज में देखने को नहीं मिलता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? जब आत्मा ज्ञान नहीं, आत्मा बल नहीं होता है। आत्मा बल, बॉडी तो बड़ी हेल्दी होती है, पहलवान की होती है, लेकिन कितने पहलवान, कितने डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर्स लोग भी नशा के शिकार बन जाते हैं। पंजाब में बड़ी समस्या है, हमने सुना है, ड्रग्स एडिक्शंस, इंटॉक्सिकेशन बड़ी समस्या हो गई है। नशा, कितना समाज नशा का शिकार हो गया है। क्यों? क्योंकि बल नहीं है। बल किसका नहीं है? आत्मा बल नहीं है। दे कैन नॉट से नो टू द बैड थिंग्स। देखो जिसमें बल होता है ना, उसमें ताकत शक्ति होती है, वो गलत चीज़ों को ना बोल पाता है। नो, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट टेक दिस, आई कैन नॉट टेक दिस। बल है। और जिसका बल नहीं वो विक्टिम बन जाता है, शिकार बन जाता है नशा का। पी ले हाँ, क्या होता है, ऐसे लोग बोल देते हैं, ओके अभी मैं क्या करूँ, उसने इतना फोर्स किया, मैं पी लिया सर, ऐसे लोग बोलते हैं। तो क्यों पी लिया उसने? क्योंकि उसका अपना कोई बल नहीं है। यू कैन नॉट से नो टू द अदर्स रॉन्ग प्रपोजल। ओके, तो ये भी आत्मबल नहीं है। तो जब बल नहीं है तो फिर विश्वास नहीं होता है, आत्मविश्वास।
बॉडी का विश्वास कि क्या है ना, बॉडी पे क्या विश्वास करेंगे। मन भी जो है, मन चंचल होती है, मन चंचल होता है। विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत। जब ज्ञान होता है तो विश्वास होता है, हमें कोई भय नहीं होता है। जिसमें विश्वास है वो व्यक्ति संयम दिखाता है, उसकी आंखें उसे धोखा नहीं देती है, उसका मन उसे धोखा नहीं देता है, उसका मन फंसाता नहीं उसे। संयम, संयम बड़ी शक्ति है। तो हमने पाया है कि जब आत्मज्ञान होता है, आज देखिए लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, बॉडी का स्टडी करते हैं, लेकिन जो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शंस होती है बॉडी की, उससे बच नहीं पाते हैं, उसके शिकार बन जाते हैं। क्यों? आत्मसंयम नहीं है। आत्मसंयम क्यों नहीं है? केवल बॉडी का स्टडी किया, लेकिन जो आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान, उसका कभी ज्ञान नहीं लिया, तो फिर संयम कहाँ से आएगा। अब बच्चों, जिसमें संयम होता है उसमें शांति होती है। शांति किसको मिलेगी? जिसका संयम है। संयम कहाँ होना चाहिए? सेंसेस के ऊपर। जो अपनी सेंसेस होती हैं, आँखें, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं अपने जीवन में एक भी अपशब्द अभी तक कभी गलती से भी नहीं बोला है, तो संयम की बात है। नवोदय में आने के बाद हमने चाय नहीं पी है, 10वीं के बाद हमने कोई बॉलीवुड सिनेमा नहीं देखा है, तो ये कैसे संभव हो पाया। हम तो मुंबई में बीटेक किए, जहाँ पे सब माया का नगर था, हम इससे बच पाए। हमारे कॉलेज के हॉस्टल में लगभग आधे बच्चे जो है नशा के शिकार हो गए थे दूसरे साल से। सब जगह होते हैं, MBBS कॉलेज हो, क्यों? उनका संयम की कमी पड़ जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 98 मार्क्स ले गए, 99 मार्क्स लेकर आए, लेकिन जीवन का जब ज्ञान नहीं था, लाइफ साइंस पता नहीं था, आत्मविज्ञान, तो नशा के शिकार, गलत आदत के शिकार बन जाते हैं। हमने संयम का जीवन जिया है। क्यों? कैसे जी पाए? ये आत्मज्ञान बच्चों, बिना आत्मज्ञान के केवल बॉडी स्टडी से संयम नहीं आएगा। तो अभी संबंध है। और देखिए, प्रज्ञानम ब्रह्म जो लिखा है ना समिति के लोगों में, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए। इसका मतलब ये होता है, किसी को पता है इसका मतलब? कोई आपको कभी अपने टीचर ने पूछा है, आपने कभी टीचर को पूछा है, आप कभी समझे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? 2 ही शब्द है। इसका मतलब यह है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे उत्तम ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान। सबसे उत्तम, सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म का मतलब होता है जीव, आत्मा। जो वेदों में वाक्य हैं कि सभी जीवों की पहचान क्या है, सभी जीव कौन हैं, कहाँ से आए हैं? अहम ब्रह्मास्मि। कभी सुना होगा वेद में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये नहीं कहा है। अहम देहोस्मि, मैं शरीर हूँ, ये नहीं कहा है। अहम मनोस्मि, मैं मन हूँ, ये नहीं कहा है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि अपनी शक्तियाँ हैं। शक्ति, व्यक्ति कौन है? जो भगवान का अंश है, ब्रह्म कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म। क्या बोलते भगवान को? पर ब्रह्म, आत्मा परमात्मा। वैसे ब्रह्म हम हैं, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान कौन है? पर ब्रह्म। हम जो गाते हैं ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। ये केवल गाने की बात नहीं है, कोई कल्पना बना के, कोई अपने मन से कल्पना करके कुछ तो लिख दिया, बस गाना है। नहीं बच्चों, ये तो सच है कि कोई दुनिया का माता पिता, जैसे हम भी जन्म लिए हैं, शरीर जन्म लिया है, कोई माता पिता है उसके। ये कोई बोलेगा नहीं ये तो कोई इसका कोई माता पिता नहीं है, ऐसे कंपनी से बन के आ गया है, यहाँ प्रोडक्शन ऐसे हो गया कंपनी से, कोई इसका माता पिता नहीं है, बाई चांस ऐसे पैदा हो गए। नहीं, माता पिता होते हैं। और बच्चों में किसके गुण आते हैं? माता पिता के गुण आते हैं। जैसे माता पिता का नाक होता है, चेहरा होता है, आँखें होती है, वैसे बच्चों को भी होता है। हम बोल सकते हैं हाँ, देख के, हाँ ये इनके बच्चे लगते हैं, इनके बच्चे हैं, ये इनके भाई लगते हैं। क्यों? फेस मैच होता है, अपने बॉडी पार्ट्स, मतलब अपना जो शेप है, अपना जो स्ट्रक्चर मैच होता है, तो संबंध है। वैसे दुनिया का कोई माता पिता है। और ये गाते हैं हम नवोदय में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो।
है ना, गाते हैं नवोदय प्रेरणा में, हम ही नवोदय हो, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हम ही नवोदय। ये जो सुंदर प्रार्थना है, इसमें हम सबका एक भगवान हो, क्यों है, जिसका जो पिता है फिर धरती अपनी माता है, तो मनुष्य का नहीं केवल सभी जीव। इसलिए बच्चों, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो देश है, उसका विचार सबसे महान है दुनिया में। क्या? वसुदैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? केवल ये नहीं कि भारत मेरा देश है, केवल हम तो इतने आगे उसके भी गए हैं, अपना देश का संस्कृति विचार सदियों से, युगों युगों से वसुदैव कुटुंबकम, एक वेदों में आता है, अपने शास्त्रों में आता है कि हम तो पूरे विश्व को अपना क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं, जहाँ किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति गलत भाव नहीं होता है। हम पशुओं को भी अपना मानते हैं, सभी को अपना मानते हैं। ये बात नहीं है कि हम भेदभाव करते हैं, कभी नहीं। क्यों? हम जानते हैं कि हम सभी एक ही भगवान के क्या हैं? बच्चे हैं, जिसकी माता धरती है। भूमि को बोलते हैं भगवान की पत्नी। बालाजी भगवान जो है ना, वेंकटेश स्वामी बालाजी, तिरुपति बालाजी, उनके साथ दो देवियाँ होती है, एक श्री देवी मतलब महालक्ष्मी देवी, श्री देवी मतलब लक्ष्मी, और एक भू देवी, हम बोलते हैं भारत माता की जय। तो भू देवी, भूमि, धरती माता, हम सबकी एक ही है। ये नहीं है और ये लोगों के लिए धरती अलग है, इनकी अलग है, नो, पूरा पृथ्वी सभी जीवों के लिए एक ही माँ है। एक चांद, एक सूरज, वैसे एक भगवान सबके लिए हैं। उनके नाम अनंत हो सकते हैं, होते हैं, उनके रूप अनंत होते हैं, उनकी अनुभूति अलग अलग हो सकती है, उनकी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका जैसी अनुभूति होगी वो वैसी पूजा करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम सबका एक ही है, जो बोला सबका मालिक एक ही भगवान है। ये जो गाते कभी, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हम नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। क्योंकि एक दिन हमको दम निकालना पड़ता है, एक दिन हमारा दम निकल जाएगा, निकल ही जाएगा, चाहे ना चाहे निकल जाएगा। लेकिन जीवन का यश क्या होगा, जीवन का सफलता, कि हम हंसते हंसते जाएं, खुशी खुशी जाएं। थैंक यू ऑल, कभी मिलेंगे बाद में, थैंक यू बोल के सबका धन्यवाद देके जाना, मतलब जीवन का यश है, सफलता है। ये नहीं बड़े दुखी होके, बड़ा चिंतित होके, बड़ा भयभीत होके, मुझे जाना तो नहीं है लेकिन अभी क्या करूँ, जाना ही पड़ रहा है, ये नहीं। जीवन का यश है हम ऐसे जिए ताकि हंसते हंसते जाएं। जो रोते रोते जिया होगा, हमेशा दुखी जिया होगा, वो हंसते हंसते नहीं जा पाएगा। जीना भी है हमें हंसते हंसते, जाना भी है हंसते हंसते। हो पाएगा जब जानेंगे कि हम दुनिया के मेहमान हैं, हम दुनिया में आए हैं, तो हमें जाना भी चाहिए। ये नहीं कि दुनिया में सेटल हो जाओ गाड़ी बंगला बना के, ये दुनिया में अभी तक कोई सेटल हो नहीं पाया, नहीं हो सकता। बच्चों बस अंतिम बात ये बोलता हूँ 5 मिनट, कि हमें समझना चाहिए। इससे क्या होता है लाभ? चिंता, तनाव निकल जाते हैं, भय निकल जाता है। हमने तो ये पाया है कि मृत्यु का कोई भय नहीं है, ना भविष्य की चिंता है, क्यों? ना कोई बुढ़ापे का कोई चिंता है, क्योंकि हमने आत्मज्ञान से समझा है अपनी कभी मृत्यु नहीं होती है। बॉडी तो जो गाड़ी एक दिन बंद पड़नी है, पता नहीं कब बंद पड़ेगा, तो लेकिन वो बंद पड़ेगा ही नहीं। गाड़ी रोज़ बंद पड़ती है अपनी, ये गाड़ी जो है रोज़ बंद पड़ जाती है नींद में। हम भूल जाते हैं 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए कि शरीर कोई है बोल के हम भूल जाते हैं, और सपनों की दुनिया में पूरा दुनिया घूम के आते हैं सपनों में। तो जीवन जो है बॉडी से नहीं है, इतना हमें समझना है। और इसलिए अपना सुख जो है बॉडी नहीं दे सकता, अपना सुख आत्मा का भगवान दे सकते हैं। क्यों? अपना संबंध उनसे है, तभी तो गाते ना, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु। यदि बस थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इस शब्दों पे, कि भगवान अपने माता पिता तो है ही, लेकिन बंधु, सखा और साथी, सहारा भी है, साथी है। हम बोलेंगे नहीं सच, हमें तो उदयगिरी बच्चे के हैं, हाउस के बच्चे हैं, क्लास के बच्चे हैं, गांव वाले भी सब कुछ हमारे हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि कोई ना अपना सिवा तुम्हारे? हाँ, ये सब लोग अपने हैं साथी, थोड़े दिन के हैं,
थोड़े दिन के, पता भी नहीं कितना समय के, लेकिन भगवान ऐसे साथी हैं सदा के लिए है, हमेशा के लिए। क्यों? भगवान कभी आत्मा को हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अकेला हम जी नहीं पाएंगे दुनिया में, क्योंकि दुनिया ये विदेश है। आत्मा के लिए ये दुनिया नई नहीं है, यहाँ कुछ उसको पता नहीं है, क्योंकि हम आए हैं भगवान के धाम से। मैंने कहा जो कहा हम कहाँ से आए हैं, जैसे आप लोग स्कूल में कहाँ से आए हैं, आप अपने घर से आए, माता पिता के घर से आए, वैसे हम जब आत्मा भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के धाम से ही आएंगे, थोड़ी कोई ऑफिस से आएंगे, कोई ऐसे दुकान से आएंगे, फैक्ट्री से आएंगे, भगवान के धाम से आए, जिसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ, जहाँ कोई दुखी नहीं होता है। बच्चों, हम चाहते हैं हमेशा जिए, बूढ़ा ना बने, बीमार ना हो, दुखी ना हो, सुखी होना चाहते हैं। क्यों? आत्मा का ये स्वभाव है हमेशा जीना। बॉडी का जीना पता नहीं कितना दिन का है, लेकिन आत्मा हमेशा जीती है। आत्मा को कहा गया गीता में अजन्म अमर। कितनी अच्छी बात है कि हम जो है नित्य सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद शाश्वत नित्य आनंदमय। हम सोचते हैं भविष्य में सुख मिलेगा, ये बनने के बाद सुख मिलेगा, वो पाने के बाद सुख मिलेगा। जिसको ज्ञान हो गया कि हम तो भगवान के ही बच्चे हैं, जिसका स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद, सत का मतलब सत्य, शाश्वत, न बदलने वाला। चित मतलब चिन्मय, आत्मा ज्ञानमय होती है। तो आत्मा क्या है? आनंदमय। जब पता होगा कि हम तो आनंदमयी है, दुख का कोई चांस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं हो सकता। लेकिन हम सोचते नहीं सर, मैं बॉडी हूँ, मैं ऐसी बॉडी हूँ, मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अभी ऐसा हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। अपना बाल नहीं सफ़ेद हुआ है, बॉडी का बाल सफ़ेद हुआ है। हम नहीं थके हैं, बॉडी थकी है। ये जब समझ जाएंगे ना तो हमें कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि हम कभी बूढ़े बनते ही। कितना अच्छी ज्ञान है जो भगवान दिए हैं। दुनिया को पूरे मेडिसिन साइंस जो है इसमें लगी है कि बुढ़ापे को कैसे रोका जाए, पोस्टपोन किया जाए, जीवन को कैसे बढ़ाया जाए, बीमारी को कैसे टाला जाए। वैदिक साइंस हमें तो सदा के लिए बुढ़ापा, बीमारी, पुनः पुनः जन्म मृत्यु से बचाती है, ज्ञान देकर कि यदि हम जहाँ से आए हैं, यदि हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाएं, तो हम जो चाहते हैं सदा के लिए जीना, आनंद पाना संभव है, क्योंकि अपना नित्य स्थान भगवान का धाम है। अभी नहीं जाना है, जब वेकेशन आएगा, जब जाने का छुट्टी का समय आएगा तब जाना है। जैसे बच्चे जो हैं अपने गांव कब जाते हैं? लीव में, वेकेशन में जाते हैं। तब किसी को दुख नहीं होता है, सर मैं अपना गांव, अपना स्कूल छोड़ के कैसे जाऊँ सर? जाते हैं। क्यों? अपना गांव सर। वैसे ही बच्चों, जिसको पता है, जिसने समझ लिया मैं दुनिया में कहाँ से आया हूँ, उसे मृत्यु का भय नहीं होगा, क्योंकि पता है कहाँ जाना है। मृत्यु का भय क्यों होता है? क्योंकि जब पता नहीं मुझे मैं कहाँ जाऊँगा तो भी भय लगता है मृत्यु का। समझते कि मेरा खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं बच्चों, अपना कुछ खत्म नहीं होता है। जैसे रात में हम सो जाते हैं, नया दिन जब शुरू होता है तो हमें एक नया जीवन मिलता है। हर दिन एक नया जीवन होता है। रात में हम सब भूल जाते हैं नींद में, वापस सुबह उठते तो नहीं, भगवान पुनः हमें याददाश्त देते हैं। नींद के समय भूल जाते हैं, सुबह उठने के समय भगवान वापस याददाश्त देते हैं। वही बात है, जब हमें याददाश्त आ जाए कि हम कहाँ से आए हैं। हाँ, हमें तो अपनी शक्ति से समझना कठिन है, इसलिए भगवान ज्ञान दिए हैं गीता का, स्वयं दिए भगवत गीता, जो हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, वो सब भगवान ज्ञान दिए हैं, जो वेदों का सार है। वेद पढ़ना अभी संभव नहीं है, वेद बहुत मतलब गायब भी हुए हैं, नष्ट हुए हैं समय के प्रभाव में। इसलिए भगवान ने 5000 साल पहले गीता का ज्ञान स्वयं दिया, जो वेदों का सार कहलाता है। कभी जीवन में एक बार, छोटा बुक है गीता, जिसमें 700 श्लोक है, बस देखो कम से कम कि क्या सब लोग बोलते हैं गीता गीता, क्या है गीता, भगवत गीता। एक बार खुद देखो, अनुभव कीजिए, आपको फ़ायदा, आपको विश्वास आ जाएगा कि ये तो सब जीवन का विज्ञान है, दुनिया का विज्ञान है। ओके, तो मैं यही बोलना था, लाइफ साइंस जो है, यदि हम जानेंगे जीवन का विज्ञान तो हमें जीवन के मूल्य विकसित करना संभव होता है। जीवन के मूल्य में ये इतना बोलता हूँ, दूसरों के लिए सम्मान होना,
दूसरों के लिए सम्मान कब आएगा? जब हम जानेंगे सभी अपने हैं। जब बोलते हैं भारतवासी भाई बहन हैं, जब माता पिता समान होंगे तो फिर हम भाई बहन बनते हैं। तो जब हम समझते हैं कि भगवान सबके माता पिता है, तो हम अपने आप जो मनुष्य नहीं, सभी जीव भाई बहन बन जाते हैं, फैमिली बन जाती है। तो ये दूसरों के लिए सम्मान, दूसरों के लिए प्रेम, सेवा का भाव, ये मूल्य, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्म शांति, ये आती है। और सबसे बड़ा जीवन का कौशल बोलते हैं लाइफ स्किल्स, योग। बहुत स्किल्स होती है, लिसनिंग स्किल, मेमोरी स्किल्स या सिंगिंग स्किल्स, स्टडी स्किल्स, ऐसे अनेक स्किल्स हैं। लेकिन स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा स्किल है योग। IIT के लोगों में 3 शब्द है, योग कर्मसु कौशलम। क्या कहा है? योग कर्मसु कौशलम। सभी कर्मों में सबसे महान कौशल, स्किल योग है। जुड़ना किससे? जो पावर हाउस है, पावर हाउस भगवान का। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई। तो जब भगवान से हम शक्ति ले पाएंगे, जुड़ेंगे, तो शक्ति, बुद्धि, ज्ञान लेकर सभी स्किल्स जो है हम डेवलप कर सकते हैं और अच्छा जीवन बनाकर जीवन का समाधान पा सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बड़े शांति से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर शुभता सर, नाउ आई टीचर्स वंस अगेन टू गिव मी दिस चांस टू सर्व हियर इन अ स्मॉल वे। आपको अच्छा लगा कुछ पॉइंट्स? आपको कुछ फायदा होगा इससे? तो जीवन की बात है, कितनी अच्छी बात कि हम भगवान के हनुमान जैसे, तो हमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान होगा, संयम होगा और अपना सब कुछ काम अच्छे होगा। ओके, थैंक यू ऑल वंस अगेन। All students stand up.